Hi guys, I hope you all are doing fine. Well, in this video, I'm going to solve the question answers for class 6, chapter 2, components of foods. Well guys, I hope that you are enjoying our videos, and because a lot of efforts goes into making one single video, so I really hope that these videos are helping you and we are able to solve your problems and help you in clearing your doubts as I explain all the chapters and our team, all the other teachers explain you. So for our efforts, please hit the like button, share the video, comment on the video and subscribe to our channel Schoolroom Online. Okay, now starting with this video, I'm here with class 6 question answers for chapter 2, components of food, as I told you earlier. So let's start with the first question. Name the major nutrients in our food. So I hope you all remember this. You can also refer to the previous videos to get a quick revision. The main nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins and roughage. ओके, तो हमारे खाने में जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज. रफेज को हम डाइटरी फाइबर भी लिख सकते हैं. ओके, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में वी हैव टू नेम. ओके, तो नेम द फॉलोइंग. उसमें फर्स्ट पार्ट है द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी. एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. तो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है? राइट, दैट न्यूट्रिएंट इज द कार्बोहाइड्रेट. ओके, एनर्जी हमारे को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. Now the second part of this question is name the nutrient which helps in the growth and maintenance of our body. तो ऐसा कौन सा nutrient है जो हमारी growth में और हमारी body को build करने में, उसकी maintenance में help करता है? Correct. That is the proteins. So the proteins help in the growth and development of our body. So the third part of this question is a vitamin which helps in maintaining our eyesight. एक ऐसा vitamin जो हमारी आँखों को healthy बनाता है और हमारी eyesight को maintain करने में help करता है. So think. What is that vitamin? Yes, that is vitamin A. Now coming to the last part of this question that says which mineral helps in keeping our bones healthy. तो ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है? यस, दैट इज कैल्शियम. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन है नेम 2 फूड्स रिच इन. तो उसमें फर्स्ट है फैट्स. यू हैव टू नेम 2 फूड्स विच आर रिच इन फैट्स. तो हियर आई हैव लिस्टेड 2 एग्जाम्पल्स, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शंस हैं और भी बहुत फूड आइटम्स हैं जो कि रिच होंगे फैट्स में. और इस पूरे क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आप यही आंसर्स लिखें. देयर आर मैनी करेक्ट आंसर्स. तो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको करेक्ट लगता है, यू कैन राइट दोज आंसर्स. ठीक है, तो व्हाट आई हैव रिटन फॉर फैट्स इज़ बटर एंड नट्स. ओके, दीज 2 आर द फूड आइटम्स विच प्रोवाइड फैट्स. इसके अलावा आप अपनी बुक से रेफ़र करके या डेली लाइफ में आप जो खाते हैं और आपको पता है कि इट्स अ सोर्स ऑफ फैट, यू कैन राइट दैट ऑल्सो. दैट वुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज स्टार्च. 2 फूड विच आर रिच इन स्टार्च. सो हियर आई हैव टेकन wheat and rice. The third part is dietary fiber. 2 food which are rich in dietary fiber. So I have written name of 2 vegetables, carrot, cabbage. आप कोई भी vegetable का नाम यहाँ लिख सकते हैं. Starch में भी आप कोई भी cereal का नाम लिख सकते हैं. Coming to the fourth part, protein. 2 ऐसे food items जो कि protein rich हैं. So I have written pulses and fish. Okay, now coming to the fourth question. The fourth question says you have to tick mark those statements which are correct, और जो incorrect हैं उनके आगे हमें cross लगाना है. ठीक है,
So the first statement says, by eating rice alone, you can fulfill the nutritional requirement of our body. Is this correct? क्या सिर्फ चावल खा के हमारी बॉडी को पूरा सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? क्या सिर्फ चावल खाने से हमारी ग्रोथ प्रॉपर होगी? नो, ओनली राइस खाने से तो नहीं होगा ना, सारी चीज़ें खानी होंगी हमें, छोटे छोटे अमाउंट्स में, स्मॉल अमाउंट्स में. वी नीड टू टेक एवरी फूड आइटम, राइट? So the first statement is incorrect, so you can put a cross. Okay? Coming to the second statement, it says deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. Is this correct? क्या बैलेंस डाइट खाने से हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं? Yes, this statement is correct. क्योंकि बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमारी बॉडी को रेगुलरली ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते रहते हैं. सो दैट इज़ वाई वी कैन प्रिवेंट द डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, है ना. डेफिशिएंसी डिजीज़ेस तभी होंगे ना जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी. तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होंगे ही नहीं, राइट? So this statement is correct. So you can put a tick mark. Coming to the third statement, balanced diet for our body should contain a variety of food items. Is it true? Yes, absolutely. This statement is correct. बैलेंस डाइट तभी बनेगी जब हम अपनी प्लेट में बहुत तरह का खाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ फूड रखेंगे, है ना. जैसे कि रेड कैरेट, वाइट रैडिश, ग्रीन वेजिटेबल्स. तो हमारी बैलेंस डाइट की प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? कलरफुल एंड विद अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड. अब ये ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट लेने के लिए हमें बहुत ही एग्जॉटिक चीज़ें खाने ही हैं. नहीं, बैलेंस डाइट लेने के लिए पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. नो, जो आपके आसपास अवेलेबल है वो आप सब खाओ, ऑटोमेटिकली बैलेंस डाइट बन जाएगी. क्लियर? सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू कैन पुट अ टिक मार्क. Coming to the fourth statement, meat alone is sufficient to provide all the nutrients to our body. Is this correct? अगर मैं नॉनवेज ओनली एंड ओनली नॉनवेज खाऊं विद नो फ्रूट्स, नो वेजिटेबल्स, नो वीट, नो राइस, तो क्या मेरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा? विल माई बॉडी हैव अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? नो, एब्सोल्युटली नॉट, है ना. तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें बोला था कि ओनली राइस खाने से हमारी ग्रोथ होगी. नहीं, उसी तरह ओनली मीट खाने से भी हमारी ग्रोथ नहीं होगी. वी नीड टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन आवर डाइट. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5, which is fill in the blanks. So let's have a look at the first blank. The first blank says dash is caused by the deficiency of vitamin D. तो अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, कमी हो जाएगी, तो हमें क्या हो सकता है? रिकेट्स. So it can cause rickets. Okay. Now coming to the second blank that says deficiency of dash causes a disease called beriberi. तो बेरी किस विटामिन या किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है? एक्सेलेंट, दैट इज विटामिन B1. ओके. द थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज deficiency of vitamin C causes a disease known as. तो vitamin C की deficiency से कौन सा होता है? Scurvy. So we have scurvy here. And the last fill in the blank is night blindness is caused due to the deficiency of dash in our food. तो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आई साइट वीक हो रही है, तो आई साइट के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन ए. तो नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. Thanks for watching the video till end, and do subscribe to our channel Schoolroom Online. Follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Join our channel on Telegram. The links are in the description box. See you soon.